Okay, welcome back, everyone. Settle down, please. ठीक है, सबका स्वागत है। सब लोग बैठ जाइए कृपया। Okay, so out of the 5 incidents, we looked at one incident. सो उस 5 घटनाओं में से एक घटना हमने अभी देखी, How people were filled with the Holy Spirit and they spoke in other tongues. और लोग पवित्र आत्मा में भरे हुए थे और उन्होंने अन्य भाषा में बात की। Okay, let's look at one more incident. Second incident. और आइए एक दूसरा घटना भी देखेंगे, Okay, that we see in Acts chapter 8. और वो हम प्रेरितों के काम अध्याय 8 Okay. में देखते हैं। Acts chapter 8, प्रेरितों के काम अध्याय 8 and we look at verse 12. और उसका 12 वचन देखते हैं। Okay, in Acts chapter 8, we read about the persecution that happened in Jerusalem. और हम प्रेरितों के काम अध्याय के अध्याय 8 में उस सताओं के बारे में पढ़ते हैं जो यरूशलेम में हुआ था। So because of the persecution that happened after the death of Stephen, people ran away from Jerusalem. और स्तिफनास के मरणोपरांत जो सताव हुआ था यरूशलेम में, उसके चलते लोग यरूशलेम से बाहर चले गए थे। So some of them went all the way to Samaria. और कुछ लोग पूरे सामरिया में गए। And Philip was the person who went to Samaria. और फिलिप्पुस ऐसा व्यक्ति था जो समरिया को गया। And in Samaria, he shared the gospel. और समरिया में उसने ये सुसमाचार को बांटा। Okay, and many people were saved. और बहुत लोग उद्धार पाए। There were a lot of healings. There were a lot of miracles. और बहुत सारे चंगाइयां हुई, बहुत सारे अद्भुत काम हुए। So what is the name of the place where this happened? और उस जगह का नाम क्या है जहाँ यह हुआ था? Samaria. समरिया Right? में। And who is the person who is sharing the gospel in Samaria? और वह कौन व्यक्ति था जो सुसमाचार प्रचार करता समरिया में? Philip, right? Where did Philip go from? और फिलिप्पुस कहाँ से गया था? From Jerusalem. वह यरूशलेम से गया था। Right? From Jerusalem, he goes there. और यरूशलेम से वहां गया। Okay. Now, there were disciples, the apostles were in Jerusalem. और प्रेरित जब यरूशलेम में थे, Now they heard that the gospel was shared in Samaria and a lot of wonderful things were happening. और वे कहे थे, वे सुने कि समरिया में सुसमाचार का प्रचार हुआ है और बहुत सारे अद्भुत काम हो रहे थे। And so they sent Peter and John over there. और फिर उन्होंने यूहन्ना और पतरस को वहां भेजा। Okay, everyone understood this? सब समझ गए इसको? Samaria people had already received Jesus. और समरिया में प्रभु को सब लोगों ने ग्रहण कर लिया था। There was healing, there was deliverance. वहां पे छुटकारा था, चंगाई था। Right? People were very joyous, very joyful having received salvation. और यह उद्धार को प्राप्त करके लोग काफी आनंदित थे। And they were even baptized in water. और वे पानी का भी बपतिस्मा उन्हें दिया गया था। Okay, so this was the condition in Samaria. और यह अवस्था थी समरिया में। Now, when the apostles in Jerusalem heard this news, they sent Peter and John. और जब यह प्रेरित इस समाचार को उनको पता चला, तो वे पतरस और यूहन्ना को भेजे। Now let's look at Acts chapter 8 and verse 15. और आइए अभी हम प्रेरितों के काम अध्याय 8 उसका 15 वचन देखेंगे। Yeah, if you have your Bibles, turn to Acts chapter 8 verse 15. अगर आपका बाइबल है तो उसमें प्रेरितों के काम अध्याय 8 उसका 15 वचन देखिए। Okay, brother, you don't have your Bible? Bible नहीं है आपके पास? This one? Okay, आप पढ़िए। आप बाइबल दोनों एक साथ। Okay, you read it. You know, everyone has. You need to have your own Bible. Okay, so you read it. Acts chapter 8 and verse 15. प्रेरितों के काम अध्याय 8 उसका 15 वचन। देखिए सबके पास अपना बाइबल होना चाहिए, ठीक है? Yeah, everyone has. किसके पास नहीं है हाथ उठाइए। Okay. So verse 15 it says Peter and John went there. और 15 वचन कहता है पतरस और यूहन्ना वहां गया। They prayed for them, the people, that they might receive the Holy Spirit. और उनके लिए प्रार्थना की कि वे पवित्र आत्मा पाएं। Okay, so but we know that they already have the Holy Spirit. हम ये जानते हैं कि उनके पास पवित्र आत्मा पहले से था। How do we know that? उसको हम कैसे जानते हैं? Because they were already believers. क्योंकि वे पहले से ही विश्वासी थे। Right? They had already received Jesus. उन्होंने यीशु मसीह को पहले से स्वीकार कर लिया था। Now Peter and John go there and they pray that they may receive the Holy Spirit. पतरस और यूहन्ना वे गए कि वे प्रार्थना करें और लोग को पवित्र आत्मा मिले। It says in verse 16 they had only been baptized in the name of Jesus. क्योंकि वचन 16 कहता है कि उनको
यीशु मसीह के नाम से ही बपतिस्मा लिया था। Right? So that means that they were baptized in water in the name of Jesus. इसका मतलब होता है कि उनको जल में, पानी में यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा दिया गया था। So Peter and John go there and they lay hands on them and they pray for them. और पतरस और यूहन्ना वहां पे जाते हैं, उनके ऊपर हाथ रखकर उनके लिए प्रार्थना करते हैं। Then something happens. और कुछ होता है, It says they received the Holy Spirit. और ये कहता है कि वे पवित्र आत्मा पाए। Okay. Now, when this happened, there was another person there. His name was Simon. और जब ये हो रहा था तो वहां पे एक दूसरा व्यक्ति था जिसका नाम था साइमन या शमौन। Okay. Now, Simon was someone who used to be in black magic and witchcraft. और शमौन एक ऐसा व्यक्ति था जो काले जादू में, जादू टोना में लगा था। Right? So he saw something happened when they laid hands and prayed. और उन्होंने देखा कि जब वे हाथ रखे तो कुछ हुआ, उसने ऐसा देखा। Now, the Bible does not say whether they prayed in tongues. बाइबल ये नहीं बताती है कि क्या उन लोगों ने अन्य भाषा में प्रार्थना किया। The Bible does not say that, they prophesied. It does not say anything. और बाइबल ये नहीं कहती है कि उन्होंने भविष्यवाणी की, ऐसा कुछ भी नहीं कहता है। Right? But it just says that Simon saw that the Holy Spirit was given and he wanted this power. और साइमन देखा कि पवित्र आत्मा दिया जा रहा था और वह भी इस सामर्थ को पाना चाहता था। Okay? So we can learn some things from this incident. और इस घटना से हम कुछ सीख सकते हैं। What are some things that we can learn? और वो कौन सी चीजें हैं जो हम सीख सकते हैं यहाँ पर? That it was normal in those days to lay hands and pray that people receive the Holy Spirit. और यह सामान्य बात थी कि लोग हाथ रखें और पवित्र आत्मा को प्रार्थना के द्वारा प्राप्त करें। Right? Because the minute the apostles heard that people had become believers in Jesus, they sent Peter and John. और जैसे ही प्रेरितों ने सुना कि लोग विश्वासी बन गए हैं, उन्होंने पतरस और यूहन्ना को भेजा। And Peter and John, when they arrived, they immediately lay hands and said, "No, we need to pray for you." और जैसे ही पतरस और यूहन्ना वहां पहुंचा, उन्होंने यह जाना कि नहीं, हमें हाथ रख के प्रार्थना करनी है। And when they prayed, they were filled with the Holy Spirit. और जब उन्होंने प्रार्थना किया तो वह पवित्र आत्मा से भर गए। And when they were filled with the Holy Spirit, we know that something supernatural happened. और जब वे पवित्र आत्मा से भर गए तो हम जानते हैं कि कुछ अलौकिक हुआ। And it was noticeable, it was visible, because Simon says, "I want this power." और यह देखने वाली बात थी, वह दिख पड़ता था, इसीलिए समौन ने कहा कि मैं भी इस सामर्थ को प्राप्त करना चाहता हूँ। So what we learn is that, okay, it is normal for people to pray, तो हम लोगों ने क्या सीखा कि यह सामान्य है कि लोग प्रार्थना करते हैं pray for the Holy Spirit. और पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना करते हैं। And something tangible and visible happened every time they prayed. और जब वे प्रार्थना करते हैं तो कुछ दृश्य बात होती है जब वे प्रार्थना करते हैं। It was visible enough that Simon asked for this. और यह इतना ज्यादा दिखने लगा, यह दृश्य हुआ कि साइमन ने इसकी इच्छा की और उसको मांगा। And he was also willing to give them money in return for this power. और इस सामर्थ को पाने के लिए वह पैसे देने को भी तैयार था। Okay? Which means that something happened. इसका मतलब होता है कुछ तो हुआ है वहां पे। Okay. But it was very different from what we read in Acts chapter 2. और यह बहुत अलग है जो हम लोग पढ़ते हैं प्रेरितों के 2 में। Acts chapter 2, they were baptized in the Spirit, they prayed in tongues. और प्रेरितों के 2 spoke in में tongues. वो पवित्र आत्मा के द्वारा बपतिस्मा हुआ उनका और वो लोग अन्य भाषा प्राप्त किए। Right? So everybody बात- heard it and they और- came. और सब लोगों ने सुना। But और वे आए। here we don't read that. It's not mentioned that they prayed in tongues. और यहाँ पे हम लोगों ने यहाँ नहीं पाते हैं कि उन्होंने पवित्र आत्मा में या अन्य भाषा में प्रार्थना किया। Okay? But we know that something happened and it was supernatural. और यह जानते हैं कि कुछ तो हुआ जो अलौकिक था। Okay. Let's look at the third incident. आइए तीसरा घटना देखेंगे। Okay, now this is in Acts chapter 9. और यह जो है वह प्रेरितों के काम अध्याय 9 की बात है। Okay, Acts chapter 2, it happened in Jerusalem. Acts chapter 8, it happened in Samaria. Now we are looking at Acts chapter 9, and it was on the way to Damascus, or in the place called Damascus. और दमस्कस के रास्ते पे हम देखते हैं अध्याय यहाँ पर तीसरे घटने में, दूसरा घटना था जो यरूशलेम में हुआ था और तीसरा जो घटना हुआ था वह समरिया में हुआ था। Okay, so now Saul was going to Damascus. और साउल दमिश्क को जा रहा था। Now he was arresting people
who were following Jesus. और जो भी यीशु मसीह को मानते थे उसको वह पकड़ लेता था। Okay, on the way to Damascus, what happened? और दमस्कस के रास्ते में क्या हुआ बताइए? He had an encounter with Jesus. वहां पर उसको यीशु के साथ सामना हुआ। Right? Those days they used to go in on animals like horses or donkeys. और And- जी उस समय उन दिनों में वे लोग गधों या घोड़ों पर जाते थे, यात्रा करते थे। And so it says that Saul fell off when he had this encounter, fell off that animal. और उस जानवर से वह गिर गया जब उसका सामना हुआ इस समय, And he could not see. और वह देख नहीं पा रहा था। He had this conversation with और God. और यह वार्तालाप वह परमेश्वर के साथ किया। And the voice asked him, Saul, why are you persecuting? Why are you doing this? और वह जो वचन सुनाई पड़ा इस प्रकार की, साउल तुम मुझे क्यों प्रताड़ित या क्यों मुझे ताड़ना देते हो? Right. And Saul answers, his question is this, who are you, Lord? और साउल उत्तर देता है कि तुम कौन हो प्रभु? Right. So somewhere he has had a change of heart. तो कहीं तो लगता है कि उसका हृदय परिवर्तन हुआ। From the time he fell off that animal and hit the ground, he had a change of heart. और जिस समय से वह जानवर से गिरा और भूमि पर पड़ा, उस समय के दौरान उसका एक हृदय परिवर्तित हुआ। Because he's saying, who are you, Lord? वो कह रहा है तुम कौन हो प्रभु? Right. And then the Lord says, I am Jesus whom you are persecuting. और प्रभु ने कहा कि मैं यीशु हूँ जिसको तुम सताव कर रहे हो, जिसको प्रताड़ना कर रहे हो। And he gives him some instruction. और फिर वह उसको कुछ निर्देश देते हैं। He goes to Damascus and he's waiting. और वह दमिश्क को जाता है और इंतजार करता है। And the Lord appears to a man called Ananias in a vision. और वह दर्शन में अननियास को प्रभु दिखाई पड़ते हैं। He speaks to Ananias वह अननियास से बात करता है। and he says, you go meet Saul. तुम जाओ और साउल से मिलो। He is in this house. He gives the address of that place. और वह पता भी देता है उस जगह का कि वह इस घर पे है। Okay? He gives the name of the street और वह सड़क का नाम भी देता है। and he says he's staying in this place. वो कहता है कि वह इस जगह रह रहा है। He says he's staying in this house of Judas. और जुदस के घर में वो रह रहा है। So you go there. तुम वहां पे जाओ। And you go there because he has had a vision. तुम वहां पे जाओ क्योंकि उसको एक दर्शन मिला था। Right? Saul has had a vision, and in that vision he has seen a man named Ananias come and pray for him. और साउल को एक दर्शन मिला था कि उस दर्शन में एक व्यक्ति जिसका नाम हनन्याह था वो आके उसके लिए प्रार्थना करेगा। Right? See the way, wonderful way in which God is working. अब देखिए कितनी अद्भुत रीति से परमेश्वर काम कर रहे हैं यहाँ पे। Right? At the same time, he is giving Ananias a vision. He has given Saul already a vision. और यहाँ पर उसी समय हनन्याह को वो एक दर्शन दे रहे हैं और साउल को दर्शन दे चुका है। Right? And so Ananias is a little unsure. He's because he's heard about Saul. और जो हनन्याह है वो थोड़ा अनिश्चित है क्योंकि वह साउल के बारे में सुन रखा था। He's heard that how Saul has arrested people. So he says, Lord, I've heard so much about this man. और हनन्याह सुन रखा है कि इस प्रकार साउल लोगों को बंदी बनाता था और कहता है कि क्या कि प्रभु how much harm he has done your believers, your saints. आपके संतों का, आपके विश्वासों का कितना हानि क्षति उसने पहुंचाया है। But the Lord says, go. लेकिन प्रभु कहते हैं तुम जाओ। You go and pray for him. तुम जाके उसके लिए प्रार्थना करो। And so he goes. तो फिर वो जाता है। And this is what we see in verse 17, और Acts यही chapter हम 9. देखते हैं 9वें अध्याय के 17 वचन में, प्रेरितों के काम के 9वें अध्याय 17 वचन में। Okay, can somebody read it, please? क्या Acts कोई chapter इसको पढ़ 9, सकता verse है 17. अध्याय 9 का 17 कोई पढ़ सकता है क्या? जल्दी से। तब हनन्याह उठकर उस घर में गया और उस पर अपना हाथ रखकर कहा, हे भाई साउल, प्रभु अर्थात यीशु जो उस रास्ते में जिससे तू आया तुझे दिखाई दिया था, उसी ने मुझे भेजा है। Okay, so he says, he has sent me so that you can receive your sight and be filled with the Holy Spirit. और यहाँ पर कि यीशु कहा गया कि यीशु ने मुझे भेजा है और फिर तुम वह दृष्टि पाओगे और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाओगे। Okay, so in verse 18, the next verse, और 18 जो वचन है अगले वचन में देखिएगा, we read about what happened when Ananias prayed. और हम यह देख पाते हैं कि क्या हुआ जब हनन्याह ने प्रार्थना किया।
So, और परंतु उसकी आंखें तेज छिलके से गिरे गिरे और वह देखने लगा और उठकर बपतिस्मा लिया, फिर भोजन करके करके बल पाया। okay. So it says that from his eyes, something like scales fell off, और यह कहता है कि उसकी आंखों से कुछ छिलके जैसा कुछ गिरा and he could see. और वह देख पाया। Okay. He could not see earlier, but What- now he could see. वह पहले नहीं देख पा रहा था लेकिन अब वो देख पा रहा है। Right? And it says he rose up and he was baptized. और कहा कि वह उठा और वह बपतिस्मा प्राप्त किया। Okay. So which means that he was baptized in the Holy Spirit. इसका मतलब होता है कि वह पवित्र आत्मा के द्वारा उसको बपतिस्मा मिला था। Now we don't know, the Bible is silent about what happened when he was baptized in the Holy Spirit. तो बाइबल यहाँ पे हम जानते नहीं, बाइबल भी शांत है यहाँ पर कि बपतिस्मा के बाद क्या हुआ उसको हम नहीं जानते। Right. But much later, when Paul was writing to the Corinthians church, और बहुत बाद में जब कुरिन्थियों की कलीसिया को जब पौलुस लिख रहा था, Paul mentions, he says, I speak in tongues more than you all. और पौलुस बताता है कि मैं अन्य भाषा में बात करता हूं तुम सबों से ज्यादा। So we don't know, maybe Paul started praying in tongues at that time, और हम नहीं जानते, हो सकता है कि पौलुस उस समय अन्य भाषा में प्रार्थना करने or शुरू कर maybe, दिया हो, or maybe he started praying in tongues later. और हो सकता है कि बाद में उसने प्रार्थना करना शुरू कर दिया हो। But we know that from the baptism of the Holy Spirit, he started to pray in other tongues. और हम ये जानते हैं कि बपतिस्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा के बपतिस्मा के द्वारा वह अन्य भाषा में बातें करना शुरू किया। Right? So this is the third incident that we see. और ये तीसरी घटना है जो हम देखते हैं। And it happened in this place called Damascus with Saul. और ये दमिश्क में हुआ था उस जगह पे सौल के साथ। Okay. Now we read about fourth incident. और फिर हम पढ़ेंगे चौथे घटने के बारे में। Now why are we studying this? हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं? Asha, to study the work of the Holy Spirit. जी, पवित्र आत्मा के कार्यों का अध्ययन करने के लिए। Why are we looking at all these incidents? तो ये जो घटना क्रम है उसको हम क्यों देख रहे हैं? Sorry? To receive the receive. gifts of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के जो Okay. उपहारों को प्राप्त So करने के लिए। we are studying this because we want to know what happens when we are baptized in the Holy Spirit. तो हम इसलिए पढ़ रहे हैं इसे कि यह जानने के लिए कि क्या होता है जब हम पवित्र आत्मा का बपतिस्मा प्राप्त करते हैं। Because these 5 incidents, something happened when they were baptized in the Holy तो Spirit. ये 5 जो भाग हैं हम लोगों ने देखा घटना में कि कुछ हुआ जब उन्होंने पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाया। तो We also learned that it's for all the believers. और हम लोगों ने ये भी देखा कि ये उन सारे विश्वासियों के लिए। So which means it's for all of us. इसका मतलब होता है कि हम सबों के लिए भी। And we see that something supernatural happened. और हम लोगों ने देखा कि कुछ अलौकिक हुआ। So we are studying these incidents तो हम इस सारे घटनाओं को पढ़ रहे हैं so that we can be sure ताकि हम निश्चित हो जाएं that when there is the baptism of the Holy Spirit, कि जब पवित्र आत्मा का बपतिस्मा होगा we can expect these things to happen in our life or in the life of other believers. और हम ये भी अपेक्षा कर सकते हैं कि ये सारी चीजें हमारे जीवन में होगी या अन्य दूसरे विश्वासी के जीवन में भी होगी। When we know that it's in the word of God, we can stand strong in faith. और जब हम जान पाते हैं कि ये परमेश्वर के वचन में है तो अपने विश्वास में हम दृढ़ हो जाते हैं। When we know that this is what God has for us, we can stand in faith and receive in faith. और जब हम जान पाते हैं कि परमेश्वर हमारे लिए ये रखता है तो हम वहां पर विश्वास में खड़े हो पाते हैं, सुनिश्चित हो पाते हैं। Right? And that's why we are studying this. इसीलिए हम इसको पढ़ रहे हैं। Okay? So let's look at the fourth incident. तो आइए हम चौथा जो घटना है उसको भी देखेंगे। The fourth incident is in the house of this person named Cornelius. और कुरनेलियस के घर के बारे में एक घटना है उसको हम देख रहे हैं। Now, Cornelius was a Roman citizen. और जो कुरनेलियस था वो एक रोमी नागरिक था। Yeah, he was actually, I think he was a centurion. वह एक शासक था। We see this in Acts chapter 10. और उसको हम प्रेरितों के काम अध्याय 10 में देख पाते हैं। Okay, let's turn to Acts chapter 10. आइए हम सब अध्याय 10 को खोलेंगे। Yeah. So we read about
in this place called Caesarea, there was this man called Cornelius. और हम देखते हैं कि एक जगह था जिसका नाम है सिसिरिया, वहां पे यह व्यक्ति था जिसका नाम था Now कोर्नेलियस, he was a devout man. He worshipped Yahweh. और वह यावे की आराधना करता था। He was also a good man. यह भी एक बहुत अच्छा व्यक्ति है, He gave to the poor. वह गरीबों को दान किया। Now God speaks to Cornelius और फिर परमेश्वर कुरनेलियस से बात करते हैं and says, "You need to go and send people and get Peter here." और वो कहता है कि तुम लोगों को जाओ और भेजो और पतरस को लेकर आओ। And God, the Spirit, gave him the address of Peter. और परमेश्वर ने, जो आत्मा ने उसको पतरस का पता भी बताया। Okay, so he says, "Go to this place called Joppa. और यहाँ जोपा में जाओ, You need to ask for this man called Peter, वहां पे पतरस के बारे में तुम पूछो। and he's staying with this man called Simon, और यह शाइमन समौन के साथ वो रह रहा है, and this is where his house is. और जहाँ पे उसका घर है, This house is by the sea. और उसका घर You know, समुद्र के so किनारे है। all these clear details. तो आप ये सारे जो विशिष्ट विस्तार जो दिए गए हैं उसको आप The, देखिए, the Holy Spirit gives Cornelius. जो पवित्र आत्मा कुरनेलियस को देता है। Okay, so Cornelius sends people to call Peter, और फिर कुरनेलियस भेजता है पतरस को बुलाने के लिए। and we know, Peter had that vision and that big sheet with all these animals. और हम देखते हैं कि बहुत जो पतरस को एक दर्शन था एक बड़े जगह में जानवरों के साथ, Right, and that whole vision and how God asks him to eat that, we know that, we studied that. और सारे जो दर्शन है किस प्रकार परमेश्वर को खाने के लिए कहा, उन सारे बातों को हम लोगों ने पढ़ चुके हैं। Now after that, Peter goes to the house of Cornelius. और उसके बाद पतरस कुरनेलियस के घर में जाता है। Now he goes there and he sees these people who are waiting to hear the gospel. और वो जाता है और देखता है ये लोगों को जो इंतजार कर रहे हैं सुसमाचार को सुनने के लिए, They are waiting to hear about Jesus. वह इंतजार कर रहे हैं यीशु के बारे में सुनने के लिए। So Peter starts to share about Jesus. और पतरस यीशु के बारे में बांटना या साझा करना शुरू करते हैं। And as he was preaching about Jesus, और जैसे कि वह यीशु के बारे में बता रहे थे, something should have happened in their hearts. उनके दिलों में कुछ होना चाहिए था। They must have received Jesus in their hearts. हो सकता है कि वह यीशु मसीह को अभी ग्रहण कर लिया अपने जीवन में, Because it says that the Holy Spirit fell upon them. क्योंकि ये कहता है कि यीशु पवित्र आत्मा उनके ऊपर गिरा, They were filled with the Holy Spirit वे पवित्र आत्मा से भर गए थे and they started speaking in tongues. और वे अन्य भाषा में बात करना शुरू किए। Okay, let's look at Acts chapter 10, आइए And- पवित्र काम अध्याय 10 verses 44 to 46. और 44 से लेकर 46 वचन तक देखेंगे। Acts chapter 10, verse 44 to 46, please. Somebody read it. पवित्र काम 10 44 से लेकर 46 तक कोई पढ़े। पतरस ये बातें कह ही रहा था कि पवित्र आत्मा वचन के सब सुनने वालों पर उतर आया, और जितने खतना किए हुए विश्वासी पतरस के साथ आए थे वे सब चकित हुए कि अन्य जातियों पर भी पवित्र आत्मा का दान उंडेला गया है, क्योंकि उन्होंने उन्हें भांति भांति की भाषा बोलते और परमेश्वर की बड़ाई करते सुना। इस पर पतरस ने कहा। So, yeah, so it says here that तो यहाँ पे ऐसा बताता है कि people knew that they were filled with the Holy Spirit because they prayed in tongues. और लोग जान गए कि वे पवित्र आत्मा को पा चुके हैं, क्योंकि वो अन्य भाषा में बात कर रहे थे They prayed in tongues and they magnified God, glorified God. और उन्होंने पवित्र आत्मा से भर के वो प्रार्थना की और परमेश्वर की महिमा की। Right? So this is the fourth incident that we see. और ये चौथा घटना जो हम देखते हैं। Now there's something that is unique and special about this particular incident, और इस घटना के बारे में कुछ विशेष बात है जो हम देख पाते हैं, because this was the first time that the Gentiles or the non-Jews got to hear and they were filled with the Holy Spirit. और यहाँ पर पहली बार जो अन्य जाति है या जो यहूदी नहीं है वे पवित्र आत्मा से भरे और अन्य भाषा में बात किए। Right? Till then, all those three incidents, it was about the people who got filled with the Spirit were the Jewish people. और अभी तक हम लोगों ने देखा वो तीन घटनाओं में कि जो पवित्र आत्मा उनको भरा वे लोग यहूदी लोग थे। But here we see that these were the Gentiles or the non-Jewish people. और हम लोग देखते हैं यहाँ पर कि इस भाग में कि वे लोग अन्य जाति थे और जो यहूदी नहीं थे उनके बारे में। Right? So which means that whether you're a Jew or a Gentile, इसका मतलब होता है कि अगर आप यहूदी हैं
या अन्य जाति के हैं, Now, for God, it does not matter परमेश्वर के लिए कोई बात नहीं है ये, because when you receive Jesus, you are a candidate to receive the baptism of the Holy Spirit. अगर जब आप परमेश्वर को, जब आप यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं तो आप वह उम्मीदवार बन जाते हैं जो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा प्राप्त करे। And so they are all filled and they pray in tongues and they magnify God. और वे सब भर जा चुके हैं, वो परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं। Now, the Jewish people would not mingle with non-Jewish people or would not fellowship with non-Jewish people. और जो यहूदी लोग थे, जो यहूदी नहीं थे, उनसे संगति नहीं कर पा रहे थे, उनसे मेल मिलाप नहीं कर पा रहे थे, Because they would separate themselves and eat in a separate place or stay in a separate place. तो वे अपने आप को अलग करते थे, अलग जगह खाते थे, अपने आप को पूरा अलग कर देते थे वे। But God had already prepared Peter लेकिन परमेश्वर ने पतरस को पहले से तैयार कर दिया है through that vision. उस दर्शन के द्वारा। When in that sheet, when all those animals were there and he told Peter to kill and eat. और जब उस शीट में जब सारे जो जानवर थे उसको मार के खाने के लिए कहा, And the meaning of that vision was this: what God has cleansed, you cannot call that these are unclean. तो उस बात का मतलब ये है कि जिसको परमेश्वर ने शुद्ध ठहराया है उसको आप अशुद्ध नहीं ठहरा सकते। Right? So Peter stays in their house और पतरस उनके घर में रहा and he continues to minister. और फिर वह सेवकाई के कार्य शुरू करता रहा। And then he goes back to Jerusalem. और जब वह यरूशलेम को वापस गया, Right? Where did this happen? ये कहाँ पे हुआ था ये This घटना? happened in the house of Cornelius, यह कुरनेलियुस के घर पे हुआ था, a place called Caesarea. और जो सिसरिया में था। Now Peter goes back to Jerusalem और पतरस नाव अभी वापस यरूशलेम को जाता है and all the Jews are angry, और सारे यहूदी नाराज है उससे, saying, "How can you stay in a non-Jewish person's house?" और कैसे तो उस व्यक्ति के घर में रह सकते हो जो यहूदी नहीं है। And then Peter begins to explain और फिर पतरस समझाना शुरू करता है why he went there, क्यों वो वहां गया how he spoke about Jesus, और कैसे उसने यीशु के बारे में बताया and how those people were filled with the Holy Spirit and they prayed in tongues. और किस प्रकार वे लोग पवित्र आत्मा से भर गए और अन्य भाषाएं बात करने लगे। Then they said, yes, God has granted to the non-Jewish people also, to the Gentiles, the same salvation. और तब उन्होंने कहा कि हाँ, परमेश्वर ने जो अन्य जाति है, जो यहूदी नहीं है, उनको भी वही परित्राण दिया है। So here we read very clearly that they prayed in tongues. और यहाँ पर हम साफ रीति से पढ़ सकते हैं कि वे भी प्रार्थना किए अन्य भाषा में। The first instance we see very clearly that they prayed in tongues. और पहले भाग में भी देखिए साफ साफ कि वे भी प्रार्थना किए अन्य भाषा में। In Samaria, which is the second incident, it is not mentioned clearly, but we can conclude that maybe they prayed in tongues. और दूसरे घटना में यह साफ रीति से वहां तो लिखा नहीं गया है, लेकिन हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि हो सकता है कि वे भी अन्य भाषा में प्रार्थना किए। Right? In the third instance, when we read about Saul, और we can तीसरी घटना also, में we can also conclude that maybe when he was filled with the Spirit, he prayed in tongues. और तीसरी घटना में भी हम यह कह सकते हैं कि हो सकता है जब साउल पवित्र आत्मा से भरा तो उसने भी अन्य भाषा में प्रार्थना किया हो। Because we read much later that he says, I prayed in tongues more than you all. और हम देखते हैं बहुत बाद में कि उसने स्वयं कहा है कि मैं तुम सबसे बढ़कर अब अन्य भाषा में बात करता हूँ। Right? In all these four incidents in the Bible, in the book of Acts, we see that there is either a direct reference or an indirect reference about praying in tongues when they were baptized in the Holy Spirit. और हम ये चारों घटनाओं से देख पाते हैं कि एक सीधी जो बात होती है या फिर यह घुमा फिरा कर उस बात को केंद्रित करती है कि सब अन्य भाषा में बात किए। Right? Now let's go on to look at the fifth incident. आइए हम लगातार जो पांचवी घटना है उसको भी देखेंगे। And this we see in the book of Acts, chapter 19. और इसको हम देखते हैं पेतु के काम अध्याय 19 में। Okay, Acts chapter 19. पेतु के काम अध्याय 19। Now this is in this place called Ephesus. और यह जो जगह है जो होता है वह इफिसुस में होता है। And it involves Paul who is praying for people. और यहाँ पर पौलुस जो लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा है उसके बारे में है। Okay, so Paul comes to Ephesus. और पौलुस इफिसुस में आते हैं He finds some disciples there, और कुछ चेलों को पाते हैं वहां पर disciples of the Lord Jesus. जो यीशु मसीह के चेले हैं उनको। Okay, so he asks them
this question. वह उनसे यह प्रश्न पूछता है। Okay. Can anyone say what question he asked these people? क्या मैं जान सकता हूँ कि क्या प्रश्न पूछे थे इन लोगों से? He didn't ask them, what is your name? उन्होंने ये नहीं कहा कि तुम्हारा नाम क्या है, He didn't ask, what did you have for breakfast? अपने नाश्ते में क्या खाया, ये नहीं पूछा उसने। Right? He asked them one important question. Yeah. Right. So he asked them this question, did you receive the Holy Spirit when you believe? उन्होंने कहा कि क्या तुमने विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया? Right? What a strange question to ask. क्या कितना अजीब प्रश्न है ना पूछने के लिए। Normally we won't ask such questions. देखिए, हम लोग समान रूप से ऐसा नहीं पूछते हैं। Right? We'll ask them, what do you do? हम Where do कहते- you come from? ये कहते हैं कि तुम कौन हो, तुम कहाँ से आते हो, ऐसा प्रश्न पूछते हैं। But he asked them, did you receive the Holy Spirit when you believe? वह पूछता है कि क्या तुमको पवित्र आत्मा मिला जब तुमने विश्वास किया? Now the Bible says these are disciples of the Lord Jesus. और बाइबल बताती है कि यह सारे यीशु मसीह के शिष्य हैं। Look at the verse 2. आइए दूसरा वचन देखिए। The second part of it is their answer. They say, we have not heard about the Holy Spirit. और यहाँ पर वो कहते हैं कि हम लोगों ने पवित्र आत्मा के बारे में सुना ही नहीं है, वचन 2 में। They say, we have not even heard about the Holy Spirit. Who is the Holy Spirit? और वो कहते हैं कि हम तो पवित्र आत्मा के बारे में सुने भी नहीं है, ये पवित्र आत्मा कौन है? So, which means that they were believers, इसका मतलब होता है they were कि disciples of Jesus, वे विश्वासी थे, वे यीशु मसीह के शिष्य थे, but they did not have an understanding about the Holy Spirit. लेकिन उनके पास पवित्र आत्मा की समझ नहीं थी। Now, it is possible, even today, it is possible to encounter such people. और आज भी हम यह संभव है कि हम वैसे लोगों का सामना कर सकते हैं। They might be very sincere. वे बहुत अच्छे हो सकते हैं, They may know Jesus. वो यीशु को जान सकते हैं, They may be disciples of the Lord Jesus, वे हो सकते हैं यीशु मसीह के चेले भी हो सकते हैं, but they don't have an understanding of the Holy Spirit. लेकिन उनके पास पवित्र आत्मा की समझ नहीं है। So Peter asks them, फिर पतरस उनसे पूछता है, so what kind of baptism did you have? तो किस प्रकार का बपतिस्मा तुम्हारे पास है? Okay, so they said, we were baptized with the baptism of John. और हम यूहन्ना के बपतिस्मा से बपतिस्मा प्राप्त किए हैं। When John was baptizing, that same time we were also baptized. जब यूहन्ना बपतिस्मा दे रहा था, उसी समय हम लोगों ने बपतिस्मा ग्रहण किया। Then Paul, he talks to them and he says, yes, John baptized a baptism of repentance, but he said that you should be baptized in the name of Jesus, so he gets them baptized. और जब यूहन्ना कहता है कि जब यूहन्ना बपतिस्मा, पौलुस कहता है जब कि यूहन्ना बपतिस्मा देता है तो तुमको वह यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा देता है। Right? So he says, and he gets them baptized in the name of Jesus. और वह यीशु मसीह के नाम से उनको बपतिस्मा देता है। What baptism is that? Water baptism. तो वह कौन सा बपतिस्मा था? पानी का बपतिस्मा। We read that in verse 5. वह हम 5वें वचन में पढ़ते हैं। It says, and they heard this, they were baptized in the name of Jesus. और जब उन्होंने सुना, वे यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लिया। Then we see something interesting in verse 6. और 6ठे वचन में कुछ और रुचिकर हम देखते हैं, रुचिजनक देखते हैं। Okay, it says, when Paul had laid hands on them, पौलुस ने जब उन पर हाथ रखा, the Holy Spirit came upon them, तो पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतरा and they spoke with tongues and prophesied. और वे भिन्न भिन्न भाषा बोलने लगे और भविष्यवाणी करने लगे। Okay, so this is the fifth incident that we read. तो ये 5वीं घटना जिसके बारे में हम पढ़ते हैं। The Holy Spirit came upon people and they prayed with tongues, and additionally they prophesied also. तो पवित्र आत्मा आया और वे भिन्न भिन्न भाषा में प्रार्थना करने लगे और भविष्यवाणी भी करने लगे। So we can learn many things from here. तो यहाँ से भी हम बहुत सारी बातों को हम सीख सकते हैं। In the early church, it was normal for people to be laid hands and prayed for the baptism of the Holy Spirit. और प्रारंभिक कलीसिया में यह बहुत सामान्य बात थी कि लोगों के ऊपर हाथ रखे जाते और वे पवित्र आत्मा का बपतिस्मा प्राप्त करते थे। Right. See, we may come from a church tradition that does not preach about the Holy Spirit. देखिए, हम हो सकता है कि ऐसे कलीसिया के परंपरा से आ सकते हैं जो पवित्र आत्मा के बारे में बात ही नहीं करती है। Right? We may come from such a tradition. These people were from such a tradition. और हम भी उस परंपरा से आ सकते हैं, ये लोग भी उस परंपरा से थे। They did not know about the Holy Spirit. वे पवित्र आत्मा के बारे में नहीं जानते थे। They did not know about water baptism in the name of Jesus. और वे पानी का बपतिस्मा यीशु के नाम में ये भी इसके बारे में नहीं जानते थे। So water baptism happened. और फिर जल का बपतिस्मा हुआ।
And Holy Spirit baptism also happened पवित्र आत्मा का बपतिस्मा भी हुआ when Paul prayed for them. और जब पौलुस ने उनके लिए प्रार्थना की। You know, it's also interesting to note और यह बहुत ही रुचि होती है बात को जानने के लिए that Paul did what he himself received from Ananias. और पौल जो उसने किया कि वो खुद अनायास से उसको प्राप्त हुआ। Right? What did Ananias do when he came to meet Paul? सॉल को जब मिलने आया अनायास तो उसने क्या किया? He laid hands and he prayed. उसने हाथ रखा और प्रार्थना किया। And before praying, he said, I've come to lay hands and pray so that you might receive your sight and that you might receive the Holy Spirit. और उसने हाथ रखने से पहले प्रार्थना किया कि मैं इसलिए आया हूं कि मैं तुम्हारे पर हाथ रखूं कि तुम दृष्टि प्राप्त करो और पवित्र आत्मा को प्राप्त करो। So Paul did the same thing. पौलुस ने भी वही काम किया। He was now a believer. अब वह विश्वासी बन चुका था। He was a disciple of the Lord Jesus. वह यीशु मसीह का शिष्य बन चुका था। He was going to different places and preaching about Jesus. वह अलग-अलग जगहों पर जाकर यीशु मसीह का प्रचार कर रहा था। So he preached about Jesus and he laid hands and he prayed for them to be filled with the Holy Spirit. और वह प्रचार किया यीशु मसीह के बारे में और उसने हाथ रखे लोगों के ऊपर और पवित्र आत्मा उन पर उतरी। Right? So this was normal in the early church. तो ये प्रारंभिक कलीसिया में ये बातें बहुत सामान्य बातें थी। So when we put all these 5 incidents together, तो जब इन सारे पांचों घटनाओं को हम एक साथ लेकर आते हैं we can infer something. We can come to some learning about what happened here. तो इन सारे बातों को लेकर हम एक सीख प्राप्त कर सकते हैं। What is common in all these 5 incidents? तो इन सारे पांचों घटना में सबसे सामान्य बात क्या थी? It talks about the baptism of the Holy Spirit. यह पवित्र आत्मा के बपतिस्मा के बारे में बात कर रहे हैं। Right? Baptism of the Holy Spirit or being filled with the Holy Spirit. We see that as common in all these 5 incidents. तो पवित्र आत्मा के बारे की बपतिस्मा के बारे में पवित्र आत्मा से भर जाने के बारे में ये सारे पांचों घटनाओं में यह बात को हम समान रूप से पाते हैं। Right. We also learn that there can be a laying of hands or there need not be laying of hands. हम लोगों ने ये भी देखा कि हाथ रखने की जरूरत भी है या उसकी जरूरत भी नहीं। Okay. What are the times that we read when people laid hands in these 5 instances? तो 5 घटना में कहाँ हम देख रहे हैं कि लोगों ने हाथों को रखा? How many times did people actually lay hands कितने समय लोगों ने सचमुच हाथ रखा in these 5 इन instances? 5 घटनाओं में? We read about 5 instances, right? 5 incidents. हम लोगों ने 5 लगभग घटना को देखा। In these 5 incidents, how many incidents have people laying hands on others and praying and they received the baptism? तो इन पांचों घटना में से कितनी बार हम देखते हैं कि लोगों ने लोगों के ऊपर हाथ रखा और उन्होंने चंगाई प्राप्त की और पवित्र आत्मा को प्राप्त किया? 4? 4 बार? You sure? 2 बार? 4 बार? What is the first time? पहला समय कौन सा था? We read in Samaria. पहला देखते हैं समरिया में Peter and John go and they lay hands. पतरस और यूहन्ना जाता है, वो हाथ रख के प्रार्थना करता है। What is the second time that we दूसरा read? कौन सा है? And it comes to Saul, और साउल के बारे में। right? Ananias comes and he lays hands on Saul, और अननियास आता है और वह साउल के ऊपर अपना हाथ रखता है। right? What is the third time that we read? और तीसरी बात कौन सा है? Paul himself goes पौल स्वयं जाता है and in Ephesus he lays hands and prays for those disciples. और इफिसुस में जाकर वह चेलों के ऊपर अपना हाथ रखता है और प्रार्थना करता है। So we see 3 times. तो हम 3 बार देखते हैं। Right? And the other 2 instances, और दूसरे अलग 2 घटनाओं में that is the first time when people are filled in the Spirit, जो पहली बार लोगों को पवित्र आत्मा का अभिषेक हुआ all the disciples sitting in their upper room, और जो लोग ऊपरी कक्ष में बैठे हुए थे and also in Cornelius' house, और कुरनेलियस के घर में भी when people are gathered there और लोग वहां पे जमा हुए and Peter is preaching, और पतरस प्रचार करता है। both those times we don't see any laying on of hands. तो दोनों समय में कुछ हाथ रखने की सेवा को हम नहीं देखते। Right. So what do we understand? हम क्या समझते हैं? Well, when it comes to the baptism of the Holy Spirit, जब ये पवित्र आत्मा से बपतिस्मा के बारे में बात आती है there can be laying on of hands, तो हाथ रखने का हो सकता है but it can happen without laying on of hands also. और ये बिना हाथ रखे भी हो सकता है। Right? So that's something that we learn. तो वह जो चीज आज हम लोगों ने सीखी। What else do we learn? और क्या सीखे हैं? We see that something supernatural happens. हम यह देख पाते हैं कि कुछ अलौकिक हुआ And the most common of that is praying in tongues. और उसमें से सबसे जो सामान्य बात थी कि वे पवित्र
अन्य भाषा में बात किए। So, in these 5 instances, how many times do we read specifically that they were baptized in the Spirit and they prayed in tongues? इन पांचों घटनाओं में कितनी बार हम देखते हैं विशेष रूप से कि वे पवित्र आत्मा से भरे और अन्य भाषा में बात किए? How many times? कितने बार? 2 Is बार? it once, 2, thrice? क्या एक बार, दूसरी बार, How many तीसरी बार? times? कितने बार? Only once? सिर्फ एक बार? Where the Bible says, no, directly, जहाँ they वे prayed in tongues. बाइबल सीधे रूप से कहता है कि वे अन्य भाषा में बात किए। कितनी बार? 2 बार? Okay, how many of you are seeing 2? कितने 2 कह रहे हैं? times. कितने कह रहे हैं 2 बार? How many of you are seeing 3? कितने कह रहे हैं 3 बार? Okay, what about the rest? जो बाकी है उनका क्या? Okay, in these 5 तो instances, इन 5 घटनाओं में से thrice we see directly that people prayed in tongues. 3 बार हम देखते हैं कि लोग अन्य भाषाओं में सीधे रूप से बात किए। The first time in Jerusalem, when the Holy Spirit came upon the disciples, they prayed in tongues. तो पहली बार जब यरूशलेम में पवित्र आत्मा चेलों के ऊपर आया तो वे पवित्र आत्मा में बात किए, अन्य भाषा में बात किए। Right? When we read about Cornelius' house, और कुरनेलियुस के घर के बारे में हम जब देखते हैं, they prayed in tongues. वे भी अन्य भाषा में प्रार्थना किए। When we read about Paul at Ephesus, we also see that they prayed in tongues and prophesied. और जब हम लोगों ने पौलुस के बारे में देखा तो वो लोग भी एफेसस में तो वो लोग भी प्रार्थना किए और भविष्यवाणी किए। Right? 3 out of 5, there are direct references. Very clearly says they prayed in tongues. तो 5 में से 3 एकदम सीधा बताता है कि वे अन्य भाषा में बात किए। Now let's look at the other 2 instances. तो आइए दूसरे बातों को भी हम घटनाओं को देखते हैं। One is in Samaria, एक समरिया में होता है, when Peter and John prayed over people. और जब पतरस और यूहन्ना लोगों के ऊपर प्रार्थना करता है। The second one is is with Saul when Ananias prayed over Saul. और दूसरी बार देखते हैं साउल के साथ जब अननियास साउल के लिए प्रार्थना करते हैं। Okay. When Peter and John prayed over the people, जब पतरस और यूहन्ना लोगों के ऊपर प्रार्थना किया, the Bible does not say they prayed in tongues, बाइबल ये नहीं बताती कि वे अन्य भाषा में बात किए, but something happened. लेकिन कुछ हुआ। That Simon said, "I'll give you money, you give me this power." और जहाँ पे सामन कहता है कि मैं तुमको पैसा दूंगा, तुमको ये शक्ति मुझे दो। So we can say, because of all these instances, we can say maybe people also prayed in tongues. तो इन सारी घटनाओं से हम ये भी कह सकते हैं कि हो सकता है कि लोग वहां भी अन्य भाषा में प्रार्थना किए। The other instance, along with when Saul was prayed over, और दूसरी घटना में जहाँ पे साउल के ऊपर प्रार्थना किया गया, the Bible does not say that he prayed in tongues. बाइबल ये नहीं बताती कि उसने अन्य भाषा में प्रार्थना की। It just says that he was baptized in the Holy Spirit. सिर्फ ये कहता है कि वो पवित्र आत्मा में बपतिस्मा हुआ उसका। But then, knowing about Paul and the teachings of Paul and his own experience, we can say that probably he started praying in tongues. फिर भी जो पौलुस की शिक्षा थी, उसके जीवन को देख के, उसकी सेवकाई को देख सकते हैं, हम कह सकते हैं कि संभवतः उसने भी अन्य भाषा में प्रार्थना करना शुरू कर दिया हो। Right? So in all these 5 instances, we see 3 direct references and 2 indirect references to praying in tongues. और इन पांचों घटनाओं में जो 3 घटना हम देखते हैं कि सीधी रूप से अन्य भाषा में बात करती है, और जो दूसरे देखते हैं कि वह घुमा फिरा कर वह अन्य भाषा में बात करने के बारे में बात आती है। Right. So we can say that, this is one of the common gifts that we see in operation when it comes to the baptism of the Holy Spirit. तो हम ये कह सकते हैं कि यह एक सामान्य बात होती है जब पवित्र आत्मा का कार्यरत होने की बात आती है, जब वो पवित्र आत्मा में भर जाते हैं और अन्य भाषा में बात करते हैं। Okay, so it's Yes. very, very interesting to study this. तो ये बहुत ही अच्छी बात है, जिसको यह उत्साहित करने वाली बात है जब इसको हम सीखते हैं। So we know, okay, this is what happened in the early church. और तब हम यह जान पाते हैं कि प्रारंभिक कलीसिया में ये सारी बातें होती थी, This was very common in the early church. और यह प्रारंभिक कलीसिया में यह बात बहुत सामान्य थी, It was a normal practice in the early church. और यह बहुत ही सामान्य अभ्यास था उस प्राचीन या प्रारंभिक कलीसिया So में। even for us, हमारे लिए भी it should be the same. यह ऐसे ही होना चाहिए। We should not shy away from teaching about the Holy Spirit or for praying for others about the baptism of the Holy Spirit. और हमें किसी को पवित्र आत्मा के बारे में बताने के बारे में धूर्तता महसूस नहीं करनी चाहिए, या खुद सीखने के बारे में कोई भी धूर्तता महसूस नहीं करनी चाहिए। So we learn that
this baptism of the Holy Spirit is for the believers. So what is the difference between indwelling of the Holy Spirit and baptism of the Holy Spirit? तो हम देखते हैं कि जो पवित्र आत्मा का अभिषेक है या वरदान है वो विश्वासियों के लिए है। तो पवित्र आत्मा में वास करना उसका मतलब क्या होता है, पवित्र आत्मा को प्राप्त करना उसका मतलब क्या होता है? Right? So the Bible says that we are the temple of the Holy Spirit, and the Holy Spirit comes to dwell with us. और बाइबल बताते हैं कि हम वो पवित्र आत्मा के मंदिर है और पवित्र आत्मा हमारे अंदर आकर वह वास करता है। But God wants us to be filled with the Holy Spirit, and it is a separate experience that He wants all the believers to have. और परमेश्वर चाहते हैं कि हर एक विश्वासी पवित्र आत्मा से भरे रहे, और यह एक अलग अनुभव है जो परमेश्वर चाहते हैं कि हम इस अनुभव को प्राप्त करें। It is God's will. यह परमेश्वर की इच्छा है, It is God's desire यह परमेश्वर की इच्छा है for all the believers. हर एक विश्वासी के लिए। Right? And another thing that we see is that God wants to fill the believer with the Holy Spirit even after that initial experience of being filled with the Holy Spirit. और परमेश्वर का यह भी इच्छा रखते हैं कि जो विश्वासी है जब वो पहली बार पवित्र आत्मा भरता है तो उसके बाद भी वह पवित्र आत्मा को भरे रहने के लिए परमेश्वर की इच्छा होती है। Right? So there could be one baptism of the Holy Spirit, but many infillings of the Holy Spirit. तो एक पवित्र आत्मा का बपतिस्मा हो सकता है, लेकिन पवित्र आत्मा से भरना यह बहुत हो सकता है। Okay? So we see Peter being filled repeatedly by the Holy Spirit. और हम देखते हैं कि पतरस बार बार वह पवित्र आत्मा से भरा जाता था। Right? When he's standing in front of the religious leaders, और जब वह धार्मिक अगुओं के सामने जब वो खड़ा होता था, the Bible says he was filled with the Holy Spirit and he spoke with boldness. और बाइबल कहती है कि वह पवित्र आत्मा से भर गया था और वह बड़ी हिम्मत से बात किया। And when they were praying together as believers, they were जब- filled with the Holy Spirit. और जब वह विश्वासियों के साथ प्रार्थना कर रहा था उस समय भी वो बड़े हिभाव के साथ और वह पवित्र आत्मा से प्रार्थना कर रहा था। Right? So we see this happening over and over again. और हम देखते हैं कि ये बार बार ये घटना हो रही है। And the most common thing that we see is that they started praying in tongues. और सबसे सामान्य बात ये हम लोगों ने देखा कि वे पवित्र आत्मा में बात करना शुरू कर दी। So we are going to learn, in depth about what is this praying in tongues. और हम लोग और गहराई से सीखेंगे कि यह अन्य भाषा में बात करना क्या है। But simply, it just means that the Holy Spirit gives us the ability to pray in another language. तो यह साधारण रूप से यह समझे कि पवित्र आत्मा हमें वह क्षमता प्रदान करता है कि हम कुछ अन्य भाषा में प्रार्थना कर पाए। Right? And we are going to learn the benefits of praying in tongues. और हम जो लाभ है अन्य भाषा में बात करने के उसके बारे में हम सीखेंगे। Right? What are the wonderful benefits? तो क्या वो अद्भुत जो लाभ है वो क्या है। Right? And we are also going to learn about what are the different kinds of tongues. और हम ये भी देखेंगे कि वे भिन्न भिन्न प्रकार के भाषाएं क्या हैं उसके बारे में भी। Right? We're going to learn that in the coming days. और आने वाले दिनों में उनके बारे में हम सीखेंगे। Okay, quickly, maybe there are some questions that people might have about praying in tongues and baptism of the Spirit. और पवित्र आत्मा के बपतिस्मा और अन्य भाषा में प्रार्थना के बारे में हो सकता है कईयों के कुछ प्रश्न होंगे जल्दी से। So some questions people might have. कुछ लोग के पास ऐसा प्रश्न हो सकता है, How long should I wait to be baptized in the Holy Spirit? कितना देर हम इंतजार करें आत्मा में बपतिस्मा प्राप्त करने के लिए। Right? Because Jesus told the disciples, you wait in Jerusalem. और जैसे यीशु ने चेलों से कहा कि तुम यरूशलेम तक जाने से पहले इंतजार करो। Right? So they were waiting. तो वे लोग इंतजार कर रहे थे। They were waiting. और वे इंतजार कर रहे They थे, were praying. वे प्रार्थना कर रहे थे। And और on that set day, the Holy Spirit came and filled them. और उस स्थित दिवस में पवित्र आत्मा आया और उनको भर दिया। So should we also wait? तो क्या हमें भी इंतजार करना है? How long should we wait? हमें कितना इंतजार करना है? How many days or how many weeks should I wait? कितने दिनों तक, कितने सप्ताहों तक मुझे इंतजार करना है? Okay. So the answer to this question, तो इस प्रश्न का उत्तर है we'll learn tomorrow. कल सीखेंगे इसको। Okay. So I'll ask you the question. You give me your answer. मैं जो प्रश्न पूछा हूँ उसका आप उत्तर दीजिए मुझे। And then we'll look into the word and see, should we wait or should we not wait? तो हम फिर वचन में से देखेंगे कि हमें इंतजार करना चाहिए Okay. या नहीं करना चाहिए। Right. Let's pray. आइए प्रार्थना करें। Father, we thank you for this day. पिता, आपको इस दिन के लिए आपका धन्यवाद करते हैं We thank you for all this wonderful treasure that is in your word.
और प्रभु जी इतने जो धन छिपे हुए हैं आपके वचन में, इस अद्भुत धन के लिए आपका धन्यवाद Lord, करते we हैं। pray that you will continue to open our eyes to see these mysteries which are there in the word. और प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं कि आप हमारे आंखों को लगातार खोलिएगा, ताकि यह सारे रहस्य जो आपके वचन में है उसको हम जान पाए। And Lord, I pray that you will enable us to have this wonderful fellowship with the Holy Spirit every day. और प्रभु जी हम जो भी करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं कि आप हमें योग्य बनाइएगा कि प्रभु जी हम इस पवित्र आत्मा को और भी जान पाए, Continue to speak to us, Lord. और लगातार हमसे बातें कीजिए पिता। We commit ourselves into your mighty hands. और अपने हाथ आपके पवित्र हाथों में हम अपने आप को समर्पित करते हैं, And in Jesus' mighty name we pray. और यीशु के सामर्थी नाम में मांगते हैं, Amen. आमीन। Amen. And God bless. We'll meet again tomorrow. परमेश्वर आपको आशीष करे, हम कल फिर से मिलें।